بسم الله الرحمن الرحيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کئی لوگوں کی وائس ریکارڈنگ آ رہی ہے، واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں، کچھ لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں حضرت آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، کوئی تعلق سے ویڈیو نہیں آ رہی ہے۔ تو ذرا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت مصروفیات تھا، میں علاج معالجے کے چکر میں بھی، اور کچھ سفر تھے نزدیک کے، تو آنا جانا پڑتا ہے، تو سفر کے دوران اور عملیات بھی ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزوں کی وجہ سے مطلب ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں میں، اسی وجہ سے آپ کو ویڈیو موصول نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی اس میں کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں، عمل میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ حالانکہ اس تعلق سے میں نے پہلے بھی 6 ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عملیات میں کامیابی کیوں نہیں ملتی۔ ابھی آج کا بھی جو ہے یہ پارٹ نمبر 7 ہے، عملیات کی شرائط، عملیات میں کامیابی کیوں نہیں ملتی، یہ پارٹ نمبر 7 ہے۔ لوگ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھتے نہیں ہیں، ذرا دیکھ لو اس ویڈیو کو کہ اس میں کیا شرائط ہے، کیا ضوابط و قوانین ہے، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، اس کے متعلق عمل کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کامیاب کریں گے، سمجھے۔ ابھی آج تو کوئی عمل نہیں ہے، کچھ بیسک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی شکایت آ رہی ہے نا، اور الحمدللہ کچھ لوگ کامیاب بھی ہو رہے اور کچھ لوگ ناکام بھی ہو رہے، لیکن ناکام زیادہ ہو رہے اور کامیاب کم ہو رہے۔ عمل ایک ہی ہے، جو عمل میں اپلوڈ کر رہا ہوں اسی عمل میں 100 میں سے 30 لوگ 40 لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور 60-70 لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو 30-40 لوگ جو کامیاب جو ہو رہے ہیں تو یہ بھی وہی عمل کر رہے ہیں، اور جو 60-70 لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی یہی عمل کر رہے ہیں۔ اگر فیک ہوتا، عمل میں اگر کمی ہوتی تو کسی کو بھی کامیابی نہیں ملنی چاہیے تھی نا، سب کو ناکامیابی ملتی تھی۔ تو اصل وجوہات جو ہے نا، ان لوگوں نے اس پوائنٹ کو پکڑا ہے جو اصول آداب کے ساتھ جیسا ویڈیو میں بتایا گیا ہے، عمل بتایا گیا ہے، اس تعلق سے عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں کامیاب کرتا ہے۔ اور اکثر ویڈیو میں بتا بھی دیتا ہوں کیا اس کے اصول ہوتے ہیں، کیا آداب ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آوے۔ اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہے، سمجھے۔ بہت نصیب والے ہو آپ لوگ جو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے یہ ساری چیزیں سیکھنے مل جاتی ہے، نہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ کئی علماء کرام کے، کئی استادوں کے جوتے سیدھیاں کرنی پڑتی ہے جب جا کر کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے مل جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سمجھے۔ خیر، اس میں کوئی عمل نہیں بتایا جائے گا، کچھ بیسک پوائنٹ بتائی جائیں گی جس سے آپ کو عمل میں کامیابی انشاءاللہ ملے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں اسی تعلق سے، بتایا نا میں نے 6 ویڈیو بنا چکا ہوں، آج کی 7ویں ویڈیو ہے۔ کچھ اس میں اور چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو عمل میں آسانی ہو۔ تو ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، جسے اگر دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، بیٹھ کمنٹ کرنے سے اچھا ہے دیکھنا ہے تو دیکھو، اگر نہیں دیکھنا ہے تو آپ ویڈیو اسکپ کر سکتے ہو، لیکن اگر دیکھو گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ شاید اسی ویڈیو میں آپ کو معلوم پڑ جاوے کہ آپ سے کہاں پہ کون سی غلطی ہوئی تھی اور کس وجہ سے آپ کا عمل باطل ہو گیا، ناکام ہو گیا، سمجھے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت نے جتنا علم دیا ہے اتنا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب، کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا چاہیے، کیا چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کچھ چند شرائط ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پیش کروں گا۔ عملیات میں سب میں پہلی بیسک پوائنٹ ہوتی ہے نیت۔ نیت صاف رکھنا، نیت نیک رکھنا، اور نیت یہ نیک رکھنا، اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے سب میں پہلے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت نیک رکھو، نیت صاف رکھو کہ جو بھی مخلوق آپ کے تابع ہو اس سے آپ جائز کام لیں، آپ کی بھی خدمت ہو اور عوام الناس کی بھی خدمت ہو،
سمجھے. ناجائز کام کی نیت نہیں کرنا ہے، نہیں تو عمل میں کامیابی ملیں گی نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں عمل کرنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ میرا فلاں دشمن ہے، میری فلاں محبوبہ ہے جو مان رہی نہیں ہے، میں فلاں گرل فرینڈ ہے اور کسی سے میں بغض عداوت رکھتا ہوں، تو مجھے اگر عمل میں کامیابی مل گئی تو پھر میں اس سے جو ہے اس کو نقصان دوں گا، اس کو نقصان پہنچاؤں گا، یا میری محبوبہ کو، میری گرل فرینڈ کو میری طرف مائل کروں گا جو میری بات نہیں سن رہی ہے. تو ایسی سب نیتوں کو اگر رکھ کر کے آپ اگر عمل میں بیٹھو گے نا تو آپ کو عمل میں کامیابی ملے گی ہی نہیں. سب میں پہلے یہ کوئی سپلی عمل تھوڑی ہے، سپلی عمل کے قریب تو ہم جاتے بھی نہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتے. سمجھے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا سپلی عمل میں، آپ جتنا عمل سے دور رہو گے، اعمال سے دور رہو گے، سنت و شریعت سے دور رہو گے، اتنا آپ کے عمل میں مضبوطی آئیں گی. سمجھے. اور یہ تو روحانی عمل ہے. روحانی میں کیا ہے، جتنا آپ شریعت کی پابندی کرو گے، سنت و شریعت کی پابندی کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، جو احکام شریعہ کی آپ پابندی کرو گے، تو یہ سب چیزوں کی آپ اگر پابندی کرو گے تو اس میں آپ کی روحانیت بھی بڑھتی جائیں گی اور آپ کے عمل میں بھی پاور پیدا ہوتا جائے گا. سمجھے. ابھی ایک کھیت نا، ایک مثال ہے، کھیت کو بنانے کی محنت ہے، کھیت کو بگاڑنے کی محنت نہیں ہے. سمجھے. کھیت کو بنانے کی محنت ہے، کھیت کو جوتنا پڑتا ہے، پھر اس میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس کو پانی دینا پڑتا ہے، پھر ٹائم پہ اس کی فصل کو کاٹنا پڑتا ہے، پھر اس کو دوا مارنی پڑتی ہے تاکہ اس میں کیڑے بیڑے نہیں لگے، جانور موذی جانور وغیرہ داخل نہ ہو، پھر تار لگانا پڑتی ہے آجو باجو تاکہ جو ہے کوئی چیزیں کوئی چرائے نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں دھیان رکھنی پڑتی ہے. اور اگر اس کی حفاظت نہیں کرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو، 6-8 مہینے، سال 1.5 سال کے اندر ہی اس کی ستیاناش ہو جائے گا. سمجھے. تو اسی طریقے سے روحانی عملیات کی یہ پیشکش ہوتی ہے اور سفلی عمل کی یہ پیشکش ہوتی ہے کہ سفلی عمل میں آپ جتنا جھوٹ بولو گے، جتنا آپ گندگی میں رہو گے، جتنا آپ روحانیت سے دور رہو گے، جتنا آپ لوگوں کا نقصان کرو گے، اتنا آپ کو سفلی عمل میں کامیابی ملے گی اور اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور روحانی عملیات جیسا بتایا نا، میں آپ کو مثال دیا کھیت کی، تو روحانی عملیات میں ایسا ہی ہے کہ جتنا آپ جو ہے مطلب یعنی اپنے اندر سنت کو زندہ کریں گے، اللہ کے حکم کو زندہ کریں گے، اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کریں گے، سنت و شریعت کے مطابق زندگی کو گزاریں گے اور پھر آپ عمل کریں گے، تو پھر آپ کے عمل میں قوت و طاقت پیدا ہوں گی اور اس سے آپ بھی فیضیاب ہوں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ بھی فیضیاب ہوں گے، اور آپ اگر جس کے لیے عمل کریں گے تو وہ بھی فیضیاب ہوں گے. سمجھے. تو یہ ہوتا ہے سپلی میں اور جائز عملیات میں. اور سپلی عمل جو بھی کرتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ جو ہے رجحان میں، ہمیشہ جو ہے گہری سوچ میں، اور ان کو نیند کے بھی مسئلے رہتے ہیں اور ان کو ایک قسم کا ڈر اور خوف لگेला ہی رہتا ہے. سمجھے. کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہے، جو بھی ان کے پاس مخلوقات ہوتی ہے، سپلی جن، سپلی شیطان، سپلی دیوی، سپلی پری، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ وعدہ خلافی کرنے والی چیز ہے، یہ جھوٹی چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے. تو یہ ناپاک چیز اگر کوئی ناپاک عمل کر رہا ہے، سپلی عمل اگر کر رہا ہے، تو اس کے پاس اگر وہ تابع میں آنے کے باوجود بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ لائف ٹائم تک کے ساتھ میں رہے اور لائف ٹائم تک کے اس کا ساتھ دے. بھلے سے وہ اس کے تابع میں رہنے کے باوجود بھی، اس کی دوست رہنے کے باوجود بھی، اس کے مسخر ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی مطلب اعتبار نہیں ہو سکتا ہے. سمجھے. اور پھر لوگوں کی ہائے بد دعا بھی رہتی ہے جس کا ہم کام بگاڑیں گے سپلی میں. سمجھے. تو جو بتایا نا میں نے آپ کو، سپلی کے لیے محنت نہیں ہے، روحانی کے لیے محنت ہے. سمجھے. لیکن سپلی میں خطرہ ہے، روحانیت میں خطرہ نہیں ہے. روحانی عمل آپ اگر کرتے ہو تو انشاءاللہ اس میں خطرہ نہیں ہے، اور اس میں جو چیز ہوں گی، نیک مسلمان جنات ہوتے ہیں اور نیک ساری کی ساری چیزیں ارواح ہوتی ہے، وہ آپ کے انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ ان سے جائز کام بھی لوں گے اور اس میں وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے ہر طرف سے جو ہے آپ کی ترقی بھی ہوں گی. سمجھے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کر کے کہ آپ اگر جو گھر میں عمل کرتے ہو نا، کوئی بھی حاضرات کے جیسے عمل ہوتے ہیں، کوئی بھی حاضرات کے عمل آپ کر رہے ہو، موکل کے ہو، جنات کے ہو، حمزات کے ہو، پری کے ہو، کوئی بھی حاضرات کے عمل کر رہے ہو، تو اس گھر میں سب میں پہلے جو ہے ایک بار اسراف عامر پڑھنا ضروری ہے. عمل سے پہلے اسراف عامر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کر کے کہ اس جگہ پہ جو چیز موجود ہوتی ہے نا،
वो इसराफ़ आमिर पढ़ने की बरकत से वो चीज़ वहाँ से हट जाती है। इसराफ़ आमिर के ताल्लुक़ से भी हमने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो इसराफ़ आमिर पढ़ने से। और अगर किसी अमल में अगर आपको अगर बताया जाता है कि रिजालुल गैब का ख़याल रखना है अमल में, तो आपको रिजालुल गैब का ख़याल रखना है उस अमल में। खैर अक्सर अमल में नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ऐसे अमल होते हैं बड़े जदीद जलाली किस्म के, जिसमें कहा जाता है कि आपको रिजालुल गैब का ख्याल रखना है। तो आपको सिर्फ एक दिन नहीं रखना है, जिस दिन आप अमल शुरू कर रहे हो उस दिन आपको रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखना है। जितने दिन तक के आपका अमल चले, चाहे 21 दिन हो, 7 दिन हो, 40 दिन हो, 41 दिन हो, 60 दिन हो, जितने दिन भी आपका अमल चलता है उतने दिन तक के आपको रिजालुल गैब का ख्याल रखना है, समझे। अब रिजालुल गैब की डायरेक्शन जो है आपके बैक साइड आना चाहिए या आपके लेफ्ट साइड आना चाहिए। आपके फ्रंट में और राइट में रिजालुल गैब की डायरेक्शन नहीं आना चाहिए, नहीं तो अमल बातिल हो जाएगा, अमल आपका ख़राब हो जाएगा, समझे। उसके ताल्लुक से भी हमने एक वीडियो बनाई है कि रिजालुल गैब की डायरेक्शन कौन से दिन किस जानिब होती है, उसके ताल्लुक से भी वीडियो है, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, समझे। बहुत तफसील से उसमें बताया गया। अभी अगर यहाँ पर अगर बताएंगे तो फिर वीडियो तवील होती जाएंगी, समझे। और तीसरी चीज़ क्या होती है करके कि आप खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। आप खुशबू जो है अपने जिस्म के ऊपर ज़्यादा लगाओ, पढ़ाई के दौरान भी और पढ़ाई के अलावा भी। और वाइट लिबास में अमल को पढ़ना चाहिए। आप अमल में अगर बैठते हो ना तो वाइट लिबास, झब्बा हो गया या कुर्ता पैजामा हो गया, जो भी है वाइट, और सुन्नत और शरीयत के हिसाब से पहनो। पैंट शर्ट मत पहनो, पैंट शर्ट से भी हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सी, और अगर आपको अगर अमल में कामयाब होना है, जल्दी आपको फैज़याब होना है, तो सुन्नत व शरीयत की आप पाबंदी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइट जब्बा है या वाइट कुर्ता है, वाइट चीज़ों को, सफ़ेद चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। तो आप जो है पढ़ाई के लिए आप उसको मुख्तस कर लो, आपकी टोपी भी वाइट हो, आपके कपड़े भी वाइट हो, और हो सके तो आपका जा नमाज जो है वो भी वाइट हो अमल की, ठीक है। और जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ होना चाहिए और कमरा पाक साफ़ होना चाहिए, और उस घर में कम से कम सामान हो, ज़्यादा सामान ना हो। ऐसा नहीं हो करके कि घर पूरा भरा हो, सोफ़े हो, कबाट हो, टूल हो, कुर्सी हो, सारी की सारी चीज़ें हो, उसके बीच में आप अमल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर अगर भरा अगर होता है, उसमें अगर आप अमल करते हो तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है इस चीज़ का कि आप अगर कोई हाज़िरी के अमल में अगर कर रहे हो, और अगर उस हाज़िरी में अगर जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कबाट है या सोफ़ा है या टेबल है, तो ये इंसानों को उठाने के लिए मुश्किल है। इंसान, एक इंसान उसको उठा नहीं सकता है, लेकिन इन लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं है, समझे। आप अगर अमल में बैठे हो तो कभी ऐसा हो करके कि आपको वही उठा करके फेंक करके मार दे हाज़िरी, तो इसके लिए खाली घर कहा जाता है। और खाली घर रहने से हाज़िरी जल्दी होती है, क्योंकि उन्हें जगह मिलती है, स्पेस मिलता है, समझे, बातचीत करने के लिए, उनको हाजिर होने के लिए। हमारे जिस्म में और उनके जिस्म में बहुत फ़र्क होता है, समझे। एक और ये है कि अगर बातनी आँख का खुलना भी ज़रूरी है। अगर आपकी बातनी आँख अगर नहीं खुली है, आप अगर अमल कर रहे हो, जैसे बातनी आँख बंद है आपकी, आप अमल कर रहे हो, अमल में अगर कामयाबी मिलती है तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो चीज़ अगर आपके सामने हाजिर है, अगर आपको दिख नहीं पा रही है, तो फिर आपका अमल ज़ाया हो गया ना, क्योंकि वो तो खुद होकर के बात नहीं करेंगी, आपको बात करना पड़ेगा, आपको दिखेंगी तो। अगर वो लोग भी टेस्ट लेते, अगर वो आकर के सामने खड़ी है और वो देखते करके कि आमिल हमें देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, आमिल अगर देख पा रहा है तो फिर आमिल से पहल करते उन लोग बात करते। अगर आमिल अगर देख ही नहीं पाएगा तो फिर वो थोड़ी बात करेंगे, समझे। तो इसके लिए जो है बातनी आँख का भी खुलना ज़रूरी है। और अमल को जो है अंधेरे में किया जाता है, जो है ना, अमल को जितना हो सके अंधेरे में किया जाता है, या मोमबत्ती की रोशनी में, या चिराग की रोशनी में, या फिर जो है अपना 0 वोल्ट का जो बल्ब होता है उसमें। ज़्यादा रोशनी नहीं होना चाहिए। आपकी खिड़की विड़की अगर खुली हो, या जहाँ से अगर रोशनी आने का अंदेशा हो, तो उसको आप बंद कर दो, उसको आप पैक कर दो, वहाँ से रोशनी नहीं आवे, समझे, ताकि वो पैक हो जावे। और उसमें जो है एक बात और है करके कि आपको जो है जिस घर में अमल करते हो ना, आप याद रखो, आप अगर आमिल हो या करना चाह रहे हो, या अगर गैर आमिल हो या आमिल बनना चाह रहे हो, तो जिस घर में आप अगर अमल करते हो उस घर में आप ही ज़्यादातर आया जाया करो। किसी दूसरे शख्स को मुदालखत मत दो, किसी दूसरे शख्स को आने जाने मत दो अमल के दौरान। अमल अगर आपका नहीं है तो कोई भी आ जा सकता है, कोई मसला नहीं है। जैसे आप अगर 40 दिन के अमल कर रहे हो, उसके दौरान में सिर्फ आप ही उस कमरे में आओ, आप ही जाओ, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं जावे, समझे। और अमल के दौरान में आपके
जिस्म के ऊपर कोई किसी किस्म की तावीज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी तावीज़ नहीं होना चाहिए, ना हाथ में होना चाहिए, ना गले में होना चाहिए, ना किस में होना चाहिए। और अगर जिस अमल में बताया गया है चिराग की रोशनी में अमल करना है तो चिराग की रोशनी में अमल करना है, और अगर जिसमें बताया गया मोमबत्ती की रोशनी में अमल करना है तो मोमबत्ती की रोशनी में अमल करना है। और किस में बताया गया है करके कि 0 वोल्ट के बल्ब में अमल करना है तो उसमें अमल करना है। यानी कमरे में अंधेरा होना ज़रूरी है, ज़्यादा अंधेरा होना ज़रूरी है। और मतलब अंधेरा जितना होगा डर का माहौल बनना चाहिए ना। इसके लिए बोलते हैं ना अमलियात की लाइन में भले से जिस्म 150 ग्राम का रहेगा चलेगा, लेकिन कलेजा 1.5 किलो का होना चाहिए। और जो जिस्म जो दिल के अमराज में मुब्तला है ना, जिनको हार्ट अटैक है या जो ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर डर जाते हैं, खौफ खाते हैं, तो उन्हें अमल में आना नहीं चाहिए, समझे। उन्हें अमल भी नहीं करना चाहिए और अमल की तरफ उनका रुझान भी नहीं होना चाहिए, समझे। और अमल जो है किसी पीर व मुर्शिद या किसी उस्ताद के मातहत के अंदर आपको अमल करना चाहिए। बिना उस्ताद के आप करोगे तो नुकसान उठाओगे। मैंने भी बहुत नुकसान उठा चुका हूँ बिना उस्ताद के, लेकिन मुझे शौक़ था। आदमी गिर गिर के ही सीखता है ना। फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है हमारे उस्ताद के मातहत में अमल किए। खैर लेकिन पन क्या है, आदमी को करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जब जा कर के उसके बाद समझ में आती है। और खाली औकात में दरूद शरीफ की पाबंदी, इस्तग़फ़ार की पाबंदी, और एक ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये 3 चीज़ चलते फिरते उठते बैठते आप जितना हो सके पढ़ो। अगर आपसे अगर कोई बात कर रहा है आप बात कर लो, आपका कोई काम है काम कर लो, काम के बाद फिर आप वापस से लग जाओ। और बावज़ू होने की कोशिश करो, ज़्यादातर बावज़ू होने की कोशिश करो। आपका अगर वज़ू टूट जाता है फिर वो आप वज़ू कर लो। और जितने भी आमिल हैं या जितने भी अमल करना चाहते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है रोज़ाना 3 मरतबा दुआ रद्द रजत सुबह पढ़ना चाहिए, सुबह फजर बाद, और 100 मरतबा आयतुल कुर्सी कम से कम पढ़ना चाहिए। इसमें उनका हिसार भी हो जाता है और किसी किस्म की रुजत वगैरह और अमल के ऊपर बंदिश वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लगती है, समझे। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। और जो है आप अगर अमल में बैठोगे तो आपको जो है अलती पलती मार करके बैठना है। जैसे हम आसन वगैरह में बैठते हैं तो उस तरीके से आपको बैठना है, अलती पलती मार करके। और जितना हो सके अमल में डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, आप जितना हो सके एक ही डायरेक्शन के ऊपर बैठने की कोशिश करें। और अमल जब आप अगर करते हो, कोई भी अमल करते हो, तो आप खाली पेट अमल किया करो। खाना वाना जो भी है आपका वो अमल के बाद खाया करो। आप अगर भरे हुए पेट अगर अमल करते हो तो उससे आपको सुस्ती आएंगी, गुनूदगी आएंगी और आपको नींद तारी होंगी। फिर आपकी गैस भी खारिज हो सकती है, आपका वज़ू भी ज़ाया हो सकता है, समझे। क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। मैं एक अमल में बैठा था तो कुछ 40 दिन का ही अमल था, कुछ 37 के 38 दिन हो गए थे। तो मतलब आखिर ही था, मतलब कुछ 20-25 या 25-50 के आसपास कुछ तादाद बाकी थी मेरी वो दिन की पढ़ाई की। तो मेरे आँख लग गई, यानी पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई और मैं तादाद भूल गया। तो मेरा अमल, पूरी मेहनत मेरी पूरी बेकार हो गई। उस दिन से मैंने नियत किया करके, और ये चीज़ बुजुर्गाने दिन से भी मिलती है कि बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े आमिल जो पाए के आमिल हैं, उनका भी ये कहना है कि अमल के वक्त में खाना मत खाओ, अमल के बाद खाना खाओ। तो फिर जब से फिर मैंने फिर आदत बना लिया और उससे मुझे नुकसान हुआ इतना और इतना, मुझे शदीद गम पहुंचा कि मेरी मेहनत पूरी ज़ाया हो गई। फिर वापस से मेरे को नौचंदी का इंतज़ार करना पड़ा, फिर वापस से मैं फिर अमल करा, समझे। तो इसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप खाली पेट अमल करो, भूखे पेट अमल करो, अमल करे बाद आप खा लो। कोई अमल में अगर बताया जाता है परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली करना है तो आपको करना है, अगर नहीं बताया जाता है तो फिर नहीं करना है। हलाल चीज़ आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और अमल आँख खोल कर करना चाहिए, आँख खोल कर करना चाहिए, आँख बंद करके अमल नहीं पढ़ना चाहिए। आप कोई भी अमल करो बिंदास आँख खोलो, आँख खोल करके आप देखो, पढ़ो। अभी आप ये बोलेंगे कि कमरे में अंधेरा रहेगा तो क्या फ़ायदा आँख खोल के। कमरे में अंधेरा हो या उजाला हो, जो भी उजाला हो, जितना भी अंधेरा हो, आपको आँख खोल के ही अमल करना है, आपको आँख बंद करके अमल नहीं करना है, समझे। आँख खोल करके अमल पढ़ो, भले से आपको कुछ दिखे या नहीं दिखे, आपको आँख खोल करके अमल करना है, समझे ना। जितने भी अमल होते हैं, जैसे
घर की बंदिश है, रोज़े रिस्क की बरकत है, या कोई हाजिरात के आप अमल कर रहे हो, या कोई नूरी चीज़ के आप अमल कर रहे हो, या हुसूल बरकत के लिए आप कोई अमल कर रहे हो, या शादी के ताल्लुक़ से आप कोई अमल कर रहे हो, या कोई हाजिरात के लिए आप अमल कर रहे हो, यानी जितने भी ये जो अमल होते हैं ना, वो उरूज माह में होते हैं। उरूज माह किसे कहते हैं? 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के जितने दिन होते हैं वो उरूज माह कहलाते हैं, समझे। और बाकी जितने भी जो गलत काम होते हैं, जैसे जुदाई डालना है, कोई परेशान कर रहा है तो उस ताल्लुक़ से अगर करना है, जुदाई डालना है, किसी 2 लोगों में झगड़े लगाना है, किसी 2 लोगों में तलाक का मसला है, किसी 2 लोगों में दुश्मनी का अमल करना है, किसी 2 लोगों में मतलब यानी आपस में ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जावे, उस ताल्लुक़ से अमल करना है, या किसी को बिस्तर पे लेके आना है, या किसी का पेशाब बंद करना है, या किसी से कुछ बुग़्ज़ व अदावत का काम करना है, या किसी चीज़ को जो है किसी के ऊपर मुसल्लत करना है, या किसी के ऊपर कुछ जादू करवाना है, या किसी के ऊपर कुछ करनी करतूत करवाना है, या किसी को अगर ठिकाने लगाना है, या किसी के ऊपर किसी चीज़ को सवार कर देना है, या किसी का कारोबार बंद करवा देना है, तो ये जितने भी काम होते हैं ना, ये सब ज़वाल माह में होते हैं, समझे। ज़वाल माह होते हैं 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के, या 29 तारीख तक के। उर्दू के हिसाब से 29 का चाँद होता है या 30 का चाँद होता है ना, तो 14 तारीख से 15 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक या 30 तारीख तक के, तो ये सारे के सारे काम उसमें होते हैं। खैर वो तो हम करवाते नहीं हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के हिसाब से। आप जो है ना अमलियात में कामयाबी क्यों नहीं मिलती है, पार्ट नंबर 7 ज़रूर देखना, उसमें और तफसील से वीडियो बताए गए कि कौन सी साथ में कौन सा अमल किया जाता है और कौन सी साथ कब से शुरू होती है। एक जोगड़िया करके ऐप आता है, वह आप ऐप लोगे तो उसके अंदर साथ मालूम पड़ेंगी कौन सी साथ में कौन सा अमल किया जाता है। पहले वीडियो तवील होती जा रही है, नहीं तो और तवील हो जाएंगी, समझे। तो आप वो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी अमलियात में कामयाबी क्यों नहीं मिलती है, पार्ट नंबर 7। ये भी देख लेना और वो भी देख लेना, इसमें से अगर कुछ कमी पेशी होंगी तो उसमें आपको और मालूम पड़ जाएगा। उसमें ये भी बताया गया है कि माँ साबित सईद किसे कहा जाता है, और नक्श लिखने का तरीका भी बताया गया है, और कौन से टाइम पे कौन सा अमल करना चाहिए, कौन सी साथ में कौन सा अमल करना चाहिए, और वो सारी इजाज़त के तरीके वगैरह सारी चीज़ में और बताई गई है, समझे। तो ये कुछ आपके लिए जनरल नॉलेज थी, जो आपको इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आपके इल्म में बढ़ोतरी होवे, और फिर आप इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस तरीके से अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाब करेंगे। और एक और बात, अमल को राज रखे, अपने उस्ताद के अलावा किसी को नहीं बताए। आप अगर राज फाश कर देंगे तो ये चीज़ें जो है राज में रहना पसंद करती है। आप अगर राज में रखेंगे तो आपके काम आएंगी, आप अगर राज फाश कर देंगे तो ये भी आज़ाद हो जाएंगी, समझे। तो इसके लिए राज रखें, राज रखते हुए आप अमल करें, और आप जिस तरीके से आपको बताया गया है इस तरीके से आप अमल करें। और ज़्यादातर अमलियात उरूज माह में होते हैं और नौचंदी के दिनों में होते हैं, चाहे नौचंदी इतवार हो या नौचंदी जुमेरात हो। और ये सारे के सारे काम जो होते हैं, और कोई सिपली अमल अगर करना होता है तो वो शनिचर के दिन होता है या मंगल के दिन होता है। कोई नूरी अमल अगर करना होता है तो ज़्यादातर वो नौचंदी जुमेरात होता है या पीर का दिन होता है, इस दिन से शुरू करना पड़ता है, समझे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बतानी है, लेकिन वीडियो तवील हो रही है, इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पार्ट नंबर 6, हाँ पार्ट नंबर 6 है वो वीडियो, आप देख लेना, अमलियात में कामयाबी क्यों नहीं मिलती। ये पार्ट नंबर 7 है, समझे। आज का भी ये जो वीडियो जो था इसमें कुछ बेसिक पॉइंट बताई गई है, और उसमें पार्ट नंबर 6 में सारी चीज़ें बताई गई है। वो भी तवील वीडियो है, ये भी तवील वीडियो बन गई है, समझे। उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताई गई है, और कौन से साथ में कौन सा अमल करना है, माँ साबित सईद किसे कहा जाता है, वो भी आप देख सकते हो। प्ले स्टोर में जा कर के पार्ट नंबर 6 आप देखो, अमलियात में कामयाबी क्यों नहीं मिलती है, समझे। और जिस किसी के अगर जो कोई भी मसले मसाइल हो रूहानी ताल्लुक़ से, घर की बंदिश कराना हो, जादू जन्नात के असरात हो, और कोई मर्ज़ हो, और कोई रूहानी असरात हो, और किसी किस्म के
خبیث ارواح کے اثرات ہو، بھوت کے ہو، چڑیل کے ہو، خبیث جن کے ہو، اور کسی کے گھر کی بندش کروانا ہو، یا کاروبار کے کچھ مسئلے مسائل ہو، یا کچھ اوپری اثرات ہو، یا کچھ جادو وغیرہ کے اثرات ہو، یا اور جو کوئی بھی معاملے اور روحانی تعلق سے، وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ۔